খোদ নিজের দলের কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। শুক্রবার সন্দেশখালিতে ত্রাণ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার মদতে তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয়। সঙ্গে থাকা ত্রাণ সামগ্রী লুঠের পাশাপাশি শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন বলে দাবি মন্ত্রীর। গোটা ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ রাজ্যের মন্ত্রী গোটা বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার দুপুর 2টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালী সরবেরিয়া পেট্রোল পাম্পের কাছে কলকাতা বাসন্তী রোডের উপর। ঘটনার জেরে ত্রাণ না দিয়েই ফিরে যান মন্ত্রী। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত সন্দেশখালী সরবেরিয়ায় জমিয়াত উলেমা হিন্দের তরফ থেকে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এলাকার মানুষের মধ্যে বিলি করার উদ্দেশ্যে, যার মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, মশলা, ত্রিপল, শাড়ি ও কাপড়। অভিযোগ, দুপুর 2টো নাগাদ সরবেরিয়া পেট্রোল পাম্পের কাছে গাড়িটিকে আটকায় এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা। এলাকার মানুষের ত্রাণের প্রয়োজন নেই এই কথা বলে ত্রাণ ভর্তি গাড়িটি থেকে ত্রাণ লুট করতে থাকে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। এমনকি তারা বলে, এলাকার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অনুমতি ছাড়া এলাকায় কোনো ত্রাণ দেওয়া যাবে না। এমনটাই দাবি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর। তার অভিযোগ, গাড়ির চালককেও মারধর করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে চলে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল। শনিবার জামায়াত উলেমা কলকাতার পক্ষ থেকে মন্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। এদিন ধর্মতলার টিপু সুলতান মসজিদের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের সদস্যরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক জুলুর রহমান ওরফে আরিফ, পারভেজ আলম সহ অন্যান্যরা। অত্যন্ত দুঃখ এবং অনুতাপের বিষয়, আজ দুপুর প্রায় 2:05 হয়তো হবে, বাসন্তী থানা সরবেরিয়া মসজিদ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন সড়কে আমি ত্রাণ বিতরণ করার জন্য পৌঁছাই। আমার সাথে 4টে কনভয় ছিল, যাতে প্রায় 20-22 জন সশস্ত্র বাহিনী পুলিশরা ছিলেন। ওখানে আমার গাড়ি যাওয়া মাত্র লোকাল নেতা, পঞ্চায়েত প্রধান সম্ভবত শাহজাহান, তার ইন্ধন এবং তার উস্কানিতে কয়েকশো মানুষ আমার গাড়ি ঘেরাও করে। যে আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, আমার ত্রাণের গাড়ি তোমরা লুট করে নিয়েছো, যেখানে প্রায় 400 পরিবারের জন্য চাল, ডাল, আলু, মশলা, ত্রিপল, মেয়ের যে নতুন শাড়ি, যার মধ্যে প্রায় শতাধিক অমুসলিম মা বোনরা ছিলেন। ওদের বক্তব্য, আমাদের এখানে কোনো ত্রাণ চলবে না, আমার লুট করিনি, যা করেছি বেশ করেছি। শাহজাহান নেতা আমাদের শেষ কথা, তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমাকে আমরা খুন করে দেব। এরপরে গাড়ির সামনের বনেট টনের উপরে প্রচণ্ডভাবে পেটাপেটি শুরু করলো। আমি তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছি, তেড়ে পড়ে তারা মনে হচ্ছে আমাকে খুনই করে দেবে। 4-5 জন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের প্রেস রিলিজে জমিয়তের সম্পাদক আব্দুল সালাম দিয়েছে। আমি মিনিট 2-3 জন্য কি হয়তো 5 মিনিট সামনে দাঁড়ালাম। তোমাদের এত উত্তর বলছে, না আমরা টিএমসির লোক, তুই টিএমসির মন্ত্রী আমি জানি, কিন্তু সরে যা, তাহলে তুই মার খাবি। কি হবে আমরা জানি। আমার সঙ্গে তোমাদের রাগ কিসে? আমি তো কোনো সত্য করতে আসিনি, জনগণের রিলিফ দিতে এসেছি, 40 বছর ধরে দিচ্ছি। হিন্দু মুসলমান সবাই পাবে, তোমাদের মাথা ব্যথা কেন? এই করতে করতে আমাকে ধাক্কা দিতে শুরু করে। আমার 2টি নিরাপত্তারক্ষী, একজন নাম সাবির শেখ আর একজন উসমান শেখ, এই দুজনকেও প্রচণ্ডময় মারে। আমি ঠিক দরজার মুখে আটকে যাই নিচে, এমনভাবে ধাক্কা মারলো মনে হচ্ছে আমার পাটায় হতে বেগে যাবে। তারাও ধাক্কা मारे, আমার পুলিশে তাদের বাধা। संदेशखाली में जो हमला किया गया, अचानक रिलीफ का सामान लेके जा रहे थे। हमारी तारीख है 100 साल से ज़्यादा हमारी तंजीम को हो गया। मुल्क में जब भी कोई ऐसी आफत, वबा, आर्थिक, समाजी कोई आफत आती है, जमीयत उलमा हिंद रिलीफ का काम करती है और इंसानी बुनियाद पर ये काम करती है। मजहब धर्म की बुनियाद पर नहीं, पार्टी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का कोई आदमी अगर परेशानी में है और इस वबा का शिकार हुआ, तो उसके लिए रिलीफ पहुंचाना, उसको मदद करना, ये जमीयत का काम रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये काम जमीयत बड़े पैमाने पर की है। अभी सिर्फ यास तूफान में जो हम लोगों ने काम किया, वो तकरीबन 3.25 करोड़ का काम किया है हम लोगों ने रिलीफ का। जमीयत उलमा हिंद ने ये काम किया है।
हजमुल्लाह सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब दिन रात एक करके ये काम करवाते हैं और उनका अपना एक मकाम है बंगाल में। वो पार्टी की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो उनके काम की बुनियाद पर लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन आज पार्टी का एक छोटा सा नेता जिसकी उनके सामने कोई अहमियत नहीं है, वो नेता जो है उनके साथ इस गुंडागर्दी का जो मुजाहरा किया और उनकी गाड़ी को जिस तरह से रोक लिया और उन पर जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है कि काम करने वाले अब बंगाल में डरेंगे कि काम कैसे किया जाए। उसी पार्टी का कैबिनेट का एक मिनिस्टर, इतना बड़ा नेता, और उस पर एक छोटा सा मुकामी नेता हमला कर रहा है और फिर वो नेता कुछ करने नहीं गया है, लोगों की इंसानियत के लिए, भलाई के लिए वहां पहुंचा है, काम कर रहा है। तो इससे पूरे बंगाल में, बंगाल के अमन पसंद लोगों को और बंगाल के सेकुलर किरदार के लोगों को, गरीब तबका को बहुत तकलीफ हो रही है कि जो हमारी मदद के लिए आ सकता है उसे रोका जा सकता है, और वो भी इतना बड़ा आदमी। तो इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि शाहजहां को पार्टी से निकाला जाए, और उसने जिस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत पर हमला किया है और जो सूरत हाल पूरी पार्टी के लिए बदनामी का जरिया बन रहा है, इसलिए टीएमसी का अपना एक वकार है, टीएमसी के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द ऐसे शख्स को पार्टी से निकाला जाए और चौधरी साहब के साथ इंसाफ हो। ये सिर्फ चौधरी साहब का मसला नहीं है, जमीयत उलमा हिंद का मसला है, और करोड़ों लोग जो बंगाल के चप्पे चप्पे पर और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर जमीयत का ये झंडा थाम कर और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, ये सब आज दुखी हैं और सबों को तकलीफ है कि हम लोग इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। सियासत ये एक अलग चीज है, सियासत से बहुत ऊपर उठकर हम ये नहीं देखते हैं कि इस मुसीबत का शिकार होने वाला किस पार्टी से है या किस मजहब से है। हम सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर उसके पास पहुंचते हैं। हमारे साथ अगर ये सलूक होगा, हमें काम करने नहीं दिया जाएगा, तो और किसके साथ क्या हो सकता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और की सजा मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे और हम लोगों ने बहुत पूरा मन पीसफुल अंदाज में जो है सो रास्ता रोको और फिर ये सब किया, लेकिन उसमें इंतजामियों को हाथ में लेकर के हम लोगों ने कोई चीज आज ऐसा नहीं किया जिससे किसी को कोई बड़ी तकलीफ पहुंचे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई और पूरा बंगाल उठ पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी और इंतजामिया के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। हम सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर उसके पास पहुंचते हैं। हमारे साथ अगर ये सलूक होगा, हमें काम करने नहीं दिया जाएगा, तो और किसके साथ क्या हो सकता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और की सजा मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे और हम लोगों ने बहुत पूरा मन पीसफुल अंदाज में जो है सो रास्ता रोको और फिर ये सब किया, लेकिन उसमें इंतजामियों को हाथ में लेकर के हम लोगों ने कोई चीज आज ऐसा नहीं किया जिससे किसी को कोई बड़ी तकलीफ पहुंचे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई और पूरा बंगाल उठ पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी और इंतजामिया के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। हम लोग ने आज यहाँ धर्मतल्ला टीपू सुल्तान चौराहे पे रास्ता रोको तहरीक करी और अपना एहतजाज बुलंद किया। वो इसलिए कि कल सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के ऊपर जो कातलाना हमले की कोशिश की गई और उनका रिलीफ का पूरा सामान लूट लिया गया, ये एक मगरबी बंगाल के लिए एक शर्मनाक बात है। आज से पहले एक तंजीम 102 साल पुरानी तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, हर जगह रिलीफ का काम करती है। किसी भी स्टेट में किसी की भी हुकूमत हो, आज तक इस तरह का कोई कातलाना हमला नहीं हुआ। और सबसे शर्म की बात यह है कि खुद टीएमसी पार्टी के लोगों ने ये हमला किया। अगर ममता बनर्जी चाहती है कि आवाम कोई मदद ना पहुंचाए तो उन्हें खुल के यह ऐलान कर देना चाहिए। इस तरह के उनका गुंडा जो मारा पीटी कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। ऐसे कातिल को फौरन गिरफ्तार किया जाए, पार्टी से निकाला जाए और उसके लिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी को पूरा का पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। आज बकरीद होने की वजह से, एग्जाम होने की वजह से, लॉकडाउन के होने की वजह से हम लोग ने बहुत छोटे पैमाने पर यह एहतजाज किया, बहुत कम वक्त का एहतजाज किया, लेकिन हम लोग खामोशी से नहीं बैठेंगे। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज जो हम सभी यहाँ पे जमा हुए हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई। मुख्तसरन ये कहना है कि आज हमारे जो माननीय मंत्री हरदिल अजीज़ हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब एक मुसलमानों की आवाज़ है मगरबी बंगाल में, और जिस बुनियाद पे हमारे सीएम साहबा के दिल में वो बसे हुए थे, हुकूक़ इंसान को लेकर, इंसानियत की खिदमत को लेकर आज उस इंसानियत को चोट पहुँची है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने, हमारे ममता साहिबा ने जिस बेस पे हमारे सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को उन्होंने पार्टी में वेलकम कहा, आज उस बुनियाद को दिल ठेस पहुँची है, गोया कि आपको दिल को ठेस पहुँची है। बातें आ गई, जिस लोगों ने ये किया, गुंडागर्दी किया पार्टी के आड़ में, पार्टी के नाम पे, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए। ये सिर्फ मगरबी बंगाल की शर्मनाक बात नहीं है, ये हमारे सीएम साहिबा के लिए भी बहुत ही शर्मनाक बात है, जिनकी बहुत दूर तक पहुँच और बहुत दूर तक उनकी अच्छे काम के
बात पहुंच चुकी है, शोहरत पहुंच चुकी है। इस शोहरत की लाज रखने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, गुंडागर्दी बंद की जाए, वरना आज बहुत सारे चीज़ों को पेश नजर रखते हुए छोटे ये पे किया गया, कल को ये बड़ा भी हो सकता है, फिर किसी के बस में नहीं आ सकता। ये सैलाब का रुका है, न कभी कोई रोक पाएगा इसे। खाली में हुआ है और करने वाला जो है शाहजहां नाम का एक आदमी है जो वहाँ का टीएमसी पार्टी का प्रधान है। अब पार्टी को खुद को सोचना चाहिए कि बस शाहजहां जैसा आदमी को पार्टी में रखना चाहिए या सिद्दीकुल्ला जैसा आदमी को रखना। हंगामा हुआ, इस हंगामे से क्या मैसेज जा रहा है बंगाल में? हमारे लोग के साथ जमीन के साथ कम से कम 1200-1500 मदारिस है, मसाजिद है, हर तरफ से ये बात आ रही है। दूसरे स्टेट से भी लोग हम लोग से पूछ रहे हैं कि ममता दीदी की हुकूमत में जिस तरह से एक मिनिस्टर पे एक हमला कर रहा है और खुद उन्हीं का पार्टी का कर रहा है, दूसरा पार्टी का आदमी करता तो हम लोग को सोचने की बात है। लेकिन ये हम लोग के लिए अफसोस बात है, शर्मनाक बात है कि मगरबी बंगाल में इस तरह का हादसा हुआ। उसी के खिलाफ आज हम लोग धर्मतल्ला में 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लोगों ने वहाँ एहतजाज बुलंद किया है। हम लोग का डिमांड है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। हमको उम्मीद है कि ममता दीदी इस बारे में सही फैसला करेंगी और इसका मतलब जो है उसको सजा देंगी।